Hello students, we are back again with the next lecture for class 11th. In the previous lecture, we were talking about empirical formula and molecular formula. Let me remind you again what we have studied in that. We have come to know that molecular formula tells you the exact number of atoms of different elements present in a single molecule of any compound. Exact number, while the simplest whole number ratio of the same is called as empirical formula. For the calculation of empirical formula, we follow some steps. Like the first step is we calculate the percentage composition. Then we calculate the number of moles as per the percentage, and then we divide these number of moles from the smallest number, so that we get the simplest whole number ratio. Suppose after the division you get all the elements in the simple whole number ratio, then our work is over. But if you don't get all the elements in the simple whole number ratio, then you multiply by a suitable number. You can go through the video again in case you are not getting me. But today we have a fresh new topic, that is stoichiometry. And the very good news here is that this stoichiometry has no relation with empirical formula and molecular formula. In case you found some difficulties, although in the last video lecture I requested you guys to send me your problems, but you are not sending it, means you are getting that you have understood what empirical formula is, what molecular formula is, how to calculate. I expect that now. But now we are starting a new topic, that is the stoichiometry. What stoichiometry is? Stoichiometry is actually the combination of two words. One is stoichio plus metron. Stoichio stands for element and metron stands for measure. Okay, stoichiometry is related with the measurement. मेजरमेंट किसका? एलिमेंट का. अब ये मेजरमेंट है क्या, कैसे इसको समझ सकते हैं? लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक on the basis of knowledge we gained in class 10th. In class 10th we have come to know about the chemical equation. Like here I am dealing with the combustion of natural gas CH4 plus O2, that is giving me CO2, carbon dioxide, plus water. Actually this is a balanced this is not a balanced chemical equation, but this is a chemical equation. In the class 10th we said chemical equations are basically of two types. One is balanced and another is unbalanced. When it comes to the balanced chemical equation, means number of atoms in the reactant will be equal to number of atoms in the product side. And for that you have a process of balancing the chemical equation. But why every equation must be balanced? The reason people used to give us it must follow the law of conservation of mass, means mass can neither be created nor be destroyed. It means the total mass of the reactant must be equal to the total mass of the product. Now हम कह रहे हैं कि total mass of reactant must be equal to the total mass of the product, but हम उसको measure कैसे करते हैं? जब क्लास 10th में हमने कहा कि कोई इक्वेशन अनबैलेंस्ड है, we followed a process to convert into the balanced chemical equation. When we processed and we came to a conclusion and we said this is the balanced, it is following law of conservation of mass. ठीक है, मैं अगर आपको फिर से याद दिलाऊं, जैसे एक इक्वेशन हुआ करती थी कि Mg plus O2, that was your MgO. वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ क्लास 10th कि मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करने से पहले सैंड पेपर से रब करते हैं, तो ये इक्वेशन होती है. एक्चुअल में दिस इज योर अनबैलेंस्ड, this is your unbalanced chemical equation. फिर हम क्या कहते हैं कि भाई अनबैलेंस्ड है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होना चाहिए. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करने के लिए आप इसको बैलेंस करते हैं, और बैलेंस करने के बाद आंसर क्या आता है? 2mg plus O2 giving me 2mgO. ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ गई. ठीक है, अब ये जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होता है, ऐसा हम मानते हैं. ठीक है, ये आ गई हमारे पास बैलेंस्ड. लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हुआ. हाउ कैन यू से दैट हाउ
इक्वेशन follow law of conservation of mass। कि वो फॉलो कर रही है हमें कैसे पता है? ठीक है, ये हमारे दिमाग में क्वेश्चन आया। लेकिन हम तो बात कहाँ से शुरू कर रहे थे? हम बात कर रहे थे स्टोइचोमेट्री से। स्टोइचोमेट्री मतलब कि मेजरमेंट किसकी? एलिमेंट्स की। अब मेजरमेंट के लिए हमने क्या लिखी? कोई अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड को कन्वर्ट किया बैलेंस्ड में। बैलेंस में हम कहते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है, तो इसका मतलब है मास ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ रिएक्टेंट दो है ना, एक Mg मैग्नीशियम और एक ऑक्सीजन, के मास ऑफ Mg प्लस O2 मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन वो मास कैसे मेजर करते हैं? यही हमारे पास क्या है? स्टोइचोमेट्री है। यानी कि स्टोइचोमेट्री हमें एक बड़े बेसिक से क्वेश्चन का जवाब देती है। वो ये देती है कि भाई कितने रिएक्टेंट के लिए कितना दूसरा रिएक्टेंट चाहिए टू कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। देखो एक सिंपल सी बात बताता हूँ। हमारे घर में एक नॉर्मली प्रोसेस होता है कि शाम को सुबह डिनर बनता है। जो डिनर बनता है, हम फैमिली में कुछ लोग हैं, जैसे किसी की फैमिली में 4 मेंबर होंगे, किसी की जो फैमिली में 5 मेंबर होंगे। लेकिन आपकी मदर क्या करती है? हमेशा शी हैज एन आइडिया कि भाई उसकी डाइट इतनी है, उसकी डाइट इतनी है, उसकी डाइट इतनी है। तो इस हिसाब से शी हैज एन आइडिया कि 5 लोगों के खाने को बनाने के लिए जो है उन्हें कौन सी चीज कितनी रिक्वायरमेंट में चाहिए। मान लो कोई सब्जी बनानी है कि उस सब्जी में नमक इतना डलेगा, मिर्च इतनी डलेगी, ये कंपोनेंट इतना है, ये कंपोनेंट इतना है। शी हैज एन आइडिया। और यही आइडिया अगर केमिकल रिएक्शन के लिए मैं बात करूं कि भाई मैग्नीशियम ऑक्साइड है, सॉरी मैग्नीशियम है आपके पास, और आप उसको क्या कन्वर्ट करना चाहते हो? मैग्नीशियम ऑक्साइड में। ध्यान से सुनो मेरी बात। यू हैव मैग्नीशियम एंड यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अगर मान लो मैं आपको कह दूं किसी दिन के आपके पास 50 ग्राम जो है वो मैग्नीशियम है, 50 ग्राम मैग्नीशियम को कंप्लीटली मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए? ये स्टोइचोमेट्री है। यानी कि स्टोइचोमेट्री सिंपली क्या कहेगी? इट डील्स विद द कैलकुलेशन ऑफ मास और वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व्ड द केमिकल रिएक्शन। और सिंपली इट मींस क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मींस किसका कितना अमाउंट, रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इसका सीधा मतलब है कि अगर मैं 50 ग्राम मैग्नीशियम लेके चलूं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना बनेगा। इस बात का जवाब भी मैं दे सकता हूँ। कैसे पता चलेगा? ये देखें, आपको सिर्फ एक चीज पता है यहाँ पर कि यू हैव 50 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। लेकिन 50 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम के विद रिस्पेक्ट ऑक्सीजन कितना चाहिए मैंने अभी तक आपको नहीं बताया, या यही हमारे पास है कि हमें ऑक्सीजन कितना चाहिए। ये कैलकुलेट करना ही क्या है? स्टोइचोमेट्री है। अब स्टोइचोमेट्री के लिए आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में समझना पड़ेगा। किसी भी इक्वेशन को आप बैलेंस करेंगे, जो बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के बाद देखो यहाँ मल्टीप्लाई में क्या आया? 2 आया। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन के मल्टीप्लाई में क्या है? 1 है। यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड के मल्टीप्लाई में क्या है? 2 है। ये जो कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है, जैसे यहाँ 2, यहाँ 1 और यहाँ पे कितना? 2, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। एक्चुअल में यही वो कोफिशिएंट है जो हमें बताएंगे कि किसका कितना अमाउंट लगेगा और कितने अमाउंट में प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, 2 mg प्लस O2 इट विल गिव यू 2 MgO। यानी कि स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट अगर आपको पता करना है वो क्या है? रिप्रेजेंटेड बाय कोफिशिएंट ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कोफिशिएंट किसको कहते हैं? जो ये मल्टीप्लाई में लिखा रहेगा इसको। यानी कि आज हम जो सीखने वाले हैं वो सिर्फ इतनी सी बात है कि कितने रिएक्टेंट के लिए कितना दूसरा रिएक्टेंट चाहिए ताकि प्रोडक्ट बन जाए, और प्रोडक्ट बने तो कितना बने, इस बात का जवाब। और इस बात का जवाब ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के बाद जो मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है उसको फाइंड आउट करो। वो आपको हिंट देगा कि कौन सी चीज कितने अमाउंट में चाहिए। देखो मैं फिर से समझाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक इक्वेशन लिखी हुई है, दिस इज कंबशन ऑफ मीथेन, कि यू आर हैविंग CH4 प्लस O2 दैट गिव्स यू CO2 प्लस H2। अब ये जो रिएक्शन है ये कैसी है? अनबैलेंस्ड है। दिस इज योर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे? इसको किसी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करें।
करते हैं, देखें, वी हैव CH4 प्लस O2 दैट इज गिविंग यू CO2 प्लस 2H2। सिर्फ आप एक इक्वेशन अगर सीख गए, एक इक्वेशन अगर आप सीख जाते हैं तो आपको सारा मोल कॉन्सेप्ट आ जाएगा, आपको सारा का सारा जो है स्टोइचोमेट्री के बारे में कहीं कुछ कोई भी अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करो, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख ली। पहला स्टेप 1 क्या करो, आप इसको बैलेंस करो। स्टेप 1 बैलेंस द इक्वेशन। बैलेंस करने के लिए आपको क्लास 10th वाली अभी स्ट्रेटेजी लगानी है, ठीक है। देखें, CH4 है, अगर मुझे इसको बैलेंस करना है CH4 प्लस O2 दैट गिव्स मी CO2 प्लस 2H2O, ठीक है। अब इसके लिए मुझे शायद अब तो ये बैलेंस हो ही गई है कि कार्बन है, पहले यहाँ H2O लिखा था कि 2H2 आते ही क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, 2 ऑक्सीजन यहाँ है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं, 2 तो यहाँ और 2 इस वाटर में। एक वाटर में एक ऑक्सीजन होता है, लेकिन वाटर कितने हुए यूज हुए 2, तो टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए 4 ऑक्सीजन के लिए आपको यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। मतलब नाउ दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में आपको क्या समझना है, दूसरा स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है कि यहाँ पर है 1, ये स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, यहाँ पर है 2, ये क्या है, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, यहाँ पर क्या है 1, दिस इज अगेन योर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यहाँ पर क्या है 2, दिस इज योर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है आपको यहाँ मल्टीप्लाई में देखने को मिलेंगे। अब ये स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ही बताएंगे कि कौन सी चीज कितने अमाउंट में चाहिए या कितने अमाउंट में वो आपको प्रोडक्ट बना के देगी। कैसे पता चलेगा, देखें, एक्चुअल में आपको नोट ये करनी है, नोट दैट स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट stoichiometric coefficient represent the number of moles। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ये जो यहाँ 1 लिखा हुआ है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ जो 2 लिखा हुआ है, ये भी क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ मोल्स। ऐसे यहाँ 1 और 2 भी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स। तो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता क्या है, वो होता है कि नंबर ऑफ मोल्स, किसके कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं मोल की बात कह रहा हूं तो फिर से याद करो, रिमेंबर 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। अगर आप एटम्स लेके चले हैं तो एटम होंगे, और अगर आप मॉलिक्यूल्स लेके चले हैं तो मॉलिक्यूल्स होंगे। इज इक्वल टू, अगर एटम लेके चले हैं तो इज इक्वल टू एटॉमिक मास, और अगर आप मॉलिक्यूल लेके चले हैं तो दैट इज इक्वल टू योर मॉलिक्यूलर मास, इज इक्वल टू 22.4 लीटर। बस ये वो पॉइंट है जो इस पूरे कॉन्सेप्ट की जान है। अब देखो, अब आ जाओ यहाँ पर कि हमें क्या बताना था, हम ढूंढना क्या चाह रहे हैं कि कौन सा कितने अमाउंट में लगेगा। तो देखें यहाँ पर फिर से मैं लिख रहा हूँ, CH4 कितना है, 1 मोल। अगर CH4 1 मोल है, अगर CH4 1 मोल है, तो CH4 1 मोल होने का मतलब है इसके कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, क्योंकि CH4 क्या मॉलिक्यूल, मैं इसी खाली CH4 के ऊपर क्या लगा रहा हूँ, मोल कॉन्सेप्ट। CH4 1 मोल हो या फिर इसके एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो, ठीक है। ऐसे ही, या आप इसको कह सकते हैं 1 मोल कहें, या आप इसको एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहें, या फिर इसका मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, हाइड्रोजन कितने आपके पास 4, यानी कि 16 ग्राम, ठीक है। या आप इसको क्या कह सकते हैं, या आप इसको कह सकते हैं 22.4 लीटर। ये किसकी बात हुई, ये CH4 की। देखो ना, अब मेजरमेंट आ गया। मेजरमेंट हम दो तरीके से करने वाले हैं, तो मास में या वॉल्यूम में। तो आपके पास मास भी आ गया कितना, 16 ग्राम, और वॉल्यूम भी आ गया कितना, 22.4 लीटर्स। तो जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ऐसे ही आपके पास क्या है, 2O2 है, 2O2, ये 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर से याद करो, रिप्रेजेंट स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मोल्स।
मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा कि ऑक्सीजन का होता है जी 16, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, O2 के अंदर कितने हैं, 2 है, 16 इंटू 2 यानी कि कितने, 32, यानी कि एक O2 का कितना है 32 ग्राम। तो यहाँ पर कितने यूज हुए, 2 मोल्स के, एक मोल का है 32 ग्राम, तो 2 मोल्स का कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई 32 यानी कि 64 ग्राम। और ये कितना वॉल्यूम देगा, 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, तो 2 मोल्स का कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 22.4। देखो यहाँ से शायद अब आप चीजें समझने शुरू हो गए होंगे कि यहाँ पर हमारे दिमाग में क्वेश्चन आया था, हाउ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ऊपर से स्टोइचोमेट्री में हम क्वेश्चन फाइंड आउट कर रहे हैं कि कितने ग्राम के लिए दूसरा कितना चाहिए, रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास 16 ग्राम मीथेन है, यहाँ से ये समझने की बात करो कि 16 ग्राम मीथेन के लिए आपको ऑक्सीजन कितना चाहिए, 64 ग्राम। कहाँ से पता चला, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से पता चला, क्योंकि बैलेंस ने ही बताया कि इसका 1 मोल इसके 2 मोल के साथ रिएक्ट करता है, तो इसका मतलब इसका 1 मोल अगर इसके 2 मोल के साथ रिएक्ट करता है तो इसके 1 मोल का मतलब हो गया 16 ग्राम और इसके 2 मोल का मतलब हो गया 64 ग्राम। तो इसका मतलब है फॉर एवरी 16 ग्राम ऑफ मीथेन यू रिक्वायर 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये दोनों अभी रिएक्ट कर रहे हैं। उसके बाद चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, क्या दे रहा है, 1 मोल ऑफ CO2 है ना, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज 1, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 1 मोल। 1 मोल ऑफ CO2 का मतलब हो गया कितने मॉलिक्यूल्स, एवोगैड्रो नंबर के मॉलिक्यूल्स। और CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है भाई, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 2 और टोटल कितना हो जाएगा ये 44 ग्राम, ठीक है। और इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा 22.4 लीटर। मुझे सिर्फ बेसिक ये याद रखना है कि 1 मोल, मैं हर एक पे इंडिविजुअल मोल कॉन्सेप्ट लगाता जाऊंगा, हर चीज फॉलो हो जाएगी, हर चीज, ठीक है। उसके बाद क्या दे रहा है, उसके बाद दे रहा है 2H2O। 2H2O को भी समझ लो आप, 2H2O का मतलब है कि इसके कितने मोल्स, 2 मोल्स, इसके 2 मोल्स का मतलब हो गया जी कि इसके अंदर 2Na होगा, ठीक है। और इसका मास कितना आएगा कि वाटर का होता है 18, लेकिन वाटर कितने हैं, 2 है, तो कितना आ जाएगा 36, और इसका वॉल्यूम भी कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 22.4 लीटर। अब देखो यहाँ पर हमारे दिमाग में क्वेश्चन था कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैसे फॉलो करते हैं, हाउ कैन आई से दैट। अगर आप 10th की कॉन्सेप्ट लगाओ तो आप कभी भी नहीं बता सकते कि कौन सा कितने ग्राम, लेकिन मोल कॉन्सेप्ट लगाने के बाद आप सब बता सकते हैं कि ये देखो कि रिएक्टेंट कितना था 16 ग्राम और ये कितना 64, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के अकॉर्डिंग तो 16 ग्राम प्लस 64 ग्राम टोटल कितना आ जाएगा, ये दिस विल बी 80 ग्राम। 16 ग्राम किसका, मीथेन का, और 64 ग्राम किसका, ऑक्सीजन का, फॉर 80 ग्राम। अब प्रोडक्ट साइड देखो कितना है, प्रोडक्ट साइड है कि 44 ग्राम क्या है, CO2 है, प्लस 36 ग्राम क्या है, वाटर है। इसको भी आप जब ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 80 ग्राम। यानी कि मोल कॉन्सेप्ट ने मुझे कौन कौन से क्वेश्चंस का जवाब दिया, मुझे पहले क्वेश्चन का जवाब दिया कि भाई 16 ग्राम के लिए 64 ग्राम, 16 ग्राम के लिए कितना चाहिए 64 ग्राम। मान लो मैं किसी दिन आपको अब यहाँ पे दे दूं कि आपके पास 20 ग्राम, यू हैव 20 ग्राम ऑफ मीथेन, 20 ग्राम ऑफ मीथेन के लिए बताओ ऑक्सीजन कितनी चाहिए, क्या, ध्यान से सुनो, मुझे मोल कॉन्सेप्ट ने बताया कि 16 ग्राम के लिए 64 ग्राम चाहिए। अब मैं कहता हूं कि मैंने आपको मीथेन दे दी 20 ग्राम, तो 20 ग्राम के लिए बताओ ऑक्सीजन कितना चाहिएगा, तो मैं सीधी सी बात कहूंगा कि फॉर एवरी 16 ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड इज 64, फॉर 1 ग्राम ऑफ मीथेन 64 डिवाइड बाय 16। अब कितने के लिए कैलकुलेट करना है, 20 के लिए, तो वो मल्टीप्लाई बाय 20। मोल कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा मोल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट एक्चुअल में आपको बताता है कि कौन सी चीज, सॉरी, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिप्रेजेंट करेगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में किसके कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं,
और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में ये कहाँ लिखे मिलेंगे? मल्टीप्लाई में। जैसे 2mg प्लस O2 गिव्स यू 2mg, और ये जो 2 है mg के मल्टीप्लाई में, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, ऐसे ही ऑक्सीजन O2 के मल्टीप्लाई में क्या है? 1, ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या बताएगी स्टोइचोमेट्री? स्टोइचोमेट्री बताएगी कि कितने ग्राम रिएक्टेंट के लिए, किसी एक रिएक्टेंट के कितने ग्राम के लिए आपको दूसरा रिएक्टेंट कितना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी एक रिएक्टेंट के विद रिस्पेक्ट आपको दूसरा कितना चाहिए, और जब वो दोनों रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट कौन सा कितने ग्राम बनेगा, ये भी कौन बताएगा? स्टोइचोमेट्री। स्टोइचोमेट्री को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले स्टेप 1 में रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, दूसरे स्टेप में आप स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट की पहचान करेंगे, और तीसरे स्टेप में हर एक के ऊपर इंडिविजुअल मोल कॉन्सेप्ट लगा देंगे, वहां से आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट हियर ताकि आप नोट्स बना सकें। टेक अ स्क्रीनशॉट। So we start again. We have here N2 plus 3H2 that is giving me ammonia. जब ये अमोनिया मुझे देता है, और अब इसके बारे में पहले तो हम स्टोइचोमेट्री समझेंगे कि स्टोइचोमेट्री क्या कह रही है, फिर हम क्या समझेंगे, फिर हम समझेंगे कि ये इस स्टोइचोमेट्री का यूज हमें कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया? इसको बैलेंस किया। एक्चुअली दिस इज योर बैलेंस्ड। अगर ये बैलेंस्ड है तो बहुत सारी चीजें मेरे लिए आसान हो गई। यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या है? 1, यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या है? 3, यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या है? 2। तो ये स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका हो गया 1, इसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट इज 3, इसका कोफिशिएंट इज 2। अब यहाँ 1 क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है इसका 1 मोल। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और क्या देगा? ये आपको देगा 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। अगर जिसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अगर वो इस कॉन्सेप्ट को ना लगाए, मान लो मैं अभी तक वो नहीं करता, 10th में हम कहते थे कि ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है, हाउ कैन यू प्रूव? तो आप कहते हैं 1 + 3 4, यहाँ तो आंसर 2 आया। यानी कि ये मास मोल्स कुछ नहीं रिप्रेजेंट करता है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो कोफिशिएंट है ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स। ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, इसके ऊपर आप मोल कॉन्सेप्ट लगाओ। ठीक है, अब मोल कॉन्सेप्ट आप हमेशा के लिए अपने दिमाग में बिठा लीजिए, वो वाली लाइन हमेशा के लिए। क्या? 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू, अगर आप एटम लेके चल रहे हैं तो एटॉमिक मास, और अगर मॉलिक्यूल लेके चल रहे हैं तो दिस इज योर मॉलिक्यूलर मास, और इसका वॉल्यूम कितना आएगा? 22.4 लीटर। यही वो लाइन है जिससे आप सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर ये 1 मोल है, इसके नाइट्रोजन के ऊपर 1 मोल होगा। 1 मोल मतलब एवोगैड्रो नंबर लगा दिया जी, Na, और इसका एटॉमिक मास, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास इज 14। नाइट्रोजन कितने हैं? 2 हैं, तो 14 × 2 कितना आ गया? 28 ग्राम। यानी कि 28 ग्राम नाइट्रोजन है यहाँ पर। 1 मोल लिखने का मतलब है यहाँ नाइट्रोजन कितना है मास के टर्म्स में? 28 ग्राम। या 1 मोल का मतलब क्या हो गया? 1 मोल का आ गया 22.4 लीटर्स। 22.4 लीटर्स। अब फिर से समझो, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 3 मोल। 3 मोल का मतलब है इसके अंदर कितने? 1 मोल के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 3 के अंदर कितने होंगे? 3 Na। और इसके अंदर एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का होता है 1, लेकिन H2 के अंदर कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, और कितने हैं? ऐसे 3 है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 6 ग्राम। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि एक H2 का मास है 2, लेकिन H2 कितने यहाँ पर? 3 है। देखो ना, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर रखा है ना, तो 1 मोल का मास कितना है? 2 है, तो 3 मोल का कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। तो ये कितने मोल्स हैं? 3 मोल्स। तो टोटल वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 3 × 22.4 लीटर। ठीक है, तो यहाँ से मैंने एक बात सीखी that for every 28 ग्राम of nitrogen
nitrogen to react completely. अब ये completely word मैं क्यों use कर रहा हूँ? Soon you will come to know. ठीक है, completely. अब यहाँ पर ये क्या दे रहा है? 2 moles. 2 moles का मतलब है कितने molecules? 2Na. ठीक है, अब एक अमोनिया का मास देखो कितना होता है. नाइट्रोजन का होता है 14, हाइड्रोजन का होता है 1, लेकिन फॉर्मूला कहता है कि मेरे पास 3 हाइड्रोजन है, NH3, 3 हाइड्रोजन. तो 14 + 3 17, और कितने मोल्स हैं? 2 है, तो मल्टीप्लाई किया 2 से, कितना आ गया? 34 ग्राम. ठीक है, एंड कितने कितने वॉल्यूम है? एक मोल का होता है 22.4 लीटर्स. कितने मोल्स बन रहे हैं यहाँ पर? मल्टीप्लाई बाय, हर एक पे अलग अलग मैंने क्या लगाया? मोल कंसेप्ट. अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैसे मैं प्रूव कर सकता हूँ? देखो ये लाइन कि फॉर 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन आई रिक्वायर 6 ग्राम. कितना बनेगा? 34 ग्राम. ठीक है, टू रिएक्ट कंप्लीटली टू फॉर्म अमोनिया, टू फॉर्म 34 ग्राम ऑफ अमोनिया. ठीक है, यहां से एक बात समझ आ गई कि भाई 28 ग्राम नाइट्रोजन लगेगा, 6 ग्राम आपके पास हाइड्रोजन लगेगा, तो टोटल 34 ग्राम आपके पास क्या बन के आ जाएगा? अमोनिया बन के आ जाएगा. लेकिन अब यहाँ पर एक एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है. न्यूमेरिकल कहता है, न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट कहती है कि आपके पास है 50 किलोग्राम नाइट्रोजन. You have 50 kilogram of nitrogen which is reacting with 50 kilogram of nitrogen and 10 kilogram of hydrogen are mixed to produce ammonia. वो कहता है 50 kilogram of nitrogen is mixed with 10 kilogram of hydrogen to form ammonia. ठीक है, अब पहले सिर्फ इतनी सी स्टेटमेंट में समझूंगा कि 50 किलोग्राम नाइट्रोजन है और 10 किलोग्राम क्या है? हाइड्रोजन है. अगर मैं आपसे यहाँ पे सीधा सीधा पूछूं कि बताओ भाई अमोनिया कितना बनेगा, तो शायद आप में से कई सारे कहेंगे कि सर नाइट्रोजन कितना है? 50 kg. हाइड्रोजन कितना है? 10 kg. तो 50 + 10 60 हो गया. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाया कि 50 ये और 10 ये टोटल हो गया 60 किलोग्राम. 60 किलोग्राम अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है तो मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट. तो अमोनिया भी कितना बनना चाहिए? 60 बनना चाहिए. लेकिन आंसर इज नो. यहाँ पर अमोनिया 60 किलोग्राम नहीं बनता. क्यों नहीं बनता वो देखें. अब अकॉर्डिंग टू द स्टोइचियोमेट्री, अकॉर्डिंग टू stoichiometric calculation, we know that for every 28 gram of nitrogen, for every 28 gram of nitrogen, we require 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, अगर आपके पास नाइट्रोजन कितना है? 28 ग्राम है, तो आपको हाइड्रोजन कितना चाहिएगा? 6 ग्राम चाहिएगा. ठीक है, लेकिन अब आपके पास कितना है? आपके पास है 50 किलोग्राम. हाउ मच यू हैव? 50 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन. तो एक बार सोच के देखो कि 50 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन अगर हो तो क्या उसके लिए मुझे 10 किलोग्राम हाइड्रोजन चाहिए, या इससे ज्यादा चाहिए, या इससे कम चाहिए? ठीक है, तो देखो मैं स्टोइचियोमेट्री से ही वो फाइंड आउट करूंगा. यहाँ पे भी वो लिखा था फॉर एवरी 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन वी रिक्वायर 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन. अब हम कहेंगे दैट फॉर 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन वी रिक्वायर 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन. ये बड़ी सिंपल सी बात है. कहां से पता चली? यहीं से पता चल गई कि 28 ही 6 के साथ रिएक्ट करेगा. अगर आपके पास 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन हो तो वी रिक्वायर
मल्टीप्लाई बाय 50 किलोग्राम, ठीक है, 50 किलोग्राम। तो यहाँ ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर आप थोड़ी सी कैलकुलेशंस करेंगे, देन यू विल कम टू नो कि आपके पास आ गया ये 3 और ये आपके पास आ गया 14, ठीक है, या 7 और ये कितना आ गया 25 और ये आ गया मेरे पास 75 डिवाइड बाय 7, 75 डिवाइड बाय 7। अब देखो यहाँ पर आपके पास क्या आता है, अगर मैं अच्छा इसको सॉल्व करके क्या आएगा, किलोग्राम है, किलोग्राम होने का मतलब है कि अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 10 पॉइंट कितना आ जाएगा, दिस इज 10.7 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड। कि हाइड्रोजन कितना चाहिए मुझे, 10.7 किलोग्राम, लेकिन हाइड्रोजन दिया कितना है, ध्यान से देखो, अगर आपके पास 50 केजी ऑफ नाइट्रोजन है तो 50 केजी ऑफ नाइट्रोजन के लिए आपको चाहिए 10.7 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब ये हुआ कि 10.7 जरूरत कितने की है, दिस इज व्हाट वी रिक्वायर, 10.7, और ये कितना है, ये है आपके पास दिया हुआ है 10, यानी कि जरूरत से कम दिया हुआ है। मान लो आप मार्केट जाते हैं, एक पैंट शर्ट परचेज करने गए और पैंट शर्ट परचेज करने गए और आपको जो है 2000 रुपीज मिले हैं। अब आपको एक पैंट पसंद आई जिसकी कीमत है 2050 रुपए, सपोज करो 2050 रुपीज, लेकिन आपके पास पॉकेट में कितने हैं 2000 रुपीज। तो क्या 2000 के 2000 खर्च हो जाएंगे, सीधी सी बात है, बिल्कुल खर्च हो जाएंगे, क्योंकि वो जरूरत से कम है। अब यहाँ पर जरूरत कितनी है, 10.7 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन की, लेकिन है कितना 10 किलोग्राम, जरूरत से कम, जरूरत से कम मतलब ये सारा का सारा कंज्यूम हो जाएगा, ये सारा का सारा कंज्यूम हो जाएगा। लेकिन इसी को अगर मैं एक और तरीके से कैलकुलेशन करता, अब देखो दूसरे तरीके से मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, यहां तो मैंने निकाला कि हाइड्रोजन कितना रिक्वायर्ड है, ऐसे ही मैं कहूंगा कि फॉर 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन वी रिक्वायर 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, वही बात है, बस मैंने रिपीट कर दिया है, फ्लिप कर दिया उसको। तो 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के लिए वी रिक्वायर 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के लिए वी रिक्वायर 28 ग्राम डिवाइडेड बाय 6 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। अब आपके पास हाइड्रोजन था कितना, हाइड्रोजन था 10 केजी, कि अगर 10 केजी है तो 10 केजी ऑफ हाइड्रोजन के लिए वी रिक्वायर 28 ग्राम डिवाइड बाय 6 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 10 केजी, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया, और ये आप जब कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4.66 या 46.6 केजी ऑफ N2। यहाँ ये कैलकुलेशन है, मतलब यहाँ आपने एक बात सीखी कि अगर आपको पूरा का पूरा 50 किलोग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट करवाना है तो लगेगा कितना, 10.7 हाइड्रोजन चाहिए, इतने किलोग्राम चाहिए, लेकिन जरूरत से कम था, जरूरत से कम था, इसका मतलब है कि भाई ये जो 50 किलोग्राम नाइट्रोजन है वो पूरे तरीके से रिएक्ट नहीं करता, उसका कुछ हिस्सा बच गया, क्यों कि भाई जैसे ही 10 केजी का 10 केजी हाइड्रोजन खत्म हो गया, उसके बाद 700 ग्राम कहां से ले आओगे आप, 700 ग्राम तो कम है ना आपके पास, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर समझो कि अगर आपको 10 किलोग्राम हाइड्रोजन पूरा रिएक्ट कराना है तो नाइट्रोजन कितना चाहिए, 46.6, जबकि दिया कितना हुआ है 50 ग्राम, जरूरत कितने की है आपके पास है, जरूरत 46.6 किलोग्राम की, लेकिन 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 दिया कितना है, ज्यादा, जरूरत से ज्यादा, नाइट्रोजन जरूरत से ज्यादा है, हाइड्रोजन जरूरत से कम है। इसका मतलब है कि 10 किलोग्राम हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाते करवाते नाइट्रोजन सिर्फ कितना कंज्यूम होगा, 46.6, यानी कि बाकी बचा हुआ 3.4 किलोग्राम नाइट्रोजन एज इट इज बचा रहेगा। फिर से समझते हैं कि आप वही पैंट परचेज करने गए, लेकिन
मैंने आपको अगली बार क्या दिया, मैंने 2000 रुपीज की बजाय मैंने आपको सपोज करो 2500 रुपए दे दिए, 2500 रुपीज मैंने आपको दिए। अब पेंट की जो प्राइस है वो 2050 रुपीज है, दिए कितने मैंने 2500। इसका मतलब है कि आपके पास 450 रुपए बच गए। 450 रुपए आप खर्च नहीं कर सकते, ठीक है ना, मतलब वैसे तो खर्च कर सकते हो, लेकिन पेंट तो वही 2050 की है, 450 रुपए बच गए। लेकिन अगर मैं आपको 2500 देता हूँ, इसका मतलब है मैंने आपको जरूरत से ज्यादा पैसे दिए। जब कोई चीज जरूरत से ज्यादा दी जाती है तो वो बच जाती है, ठीक है, वो कंज्यूम नहीं होती। लेकिन कोई चीज अगर मान लो पहले मैंने आपको दिए थे 2000, जरूरत कितने की थी, 2050 की, जरूरत से कम थी, जरूरत से कम। और मैं आपसे क्या उम्मीद कर सकता हूँ फिर कि भाई 2000 देके भी आप मुझे पैसे वापस देंगे? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? आप कहेंगे अरे सर इसकी प्राइस ही 2050 है, ऊपर से 50 रुपए कम पड़ गए, ठीक है ना। जब चीज जरूरत से कम हो, जरूरत से कम हो तो वो पूरे तरीके से खर्च हो जाती है, और जब जरूरत से ज्यादा हो तो वो बच जाती है। और जब जरूरत से ज्यादा है और वो बच गई तो मतलब वो क्या थी, वो ज्यादा थी। ज्यादा थी तो हमारे पास एक चीज आती है, एक टर्म आती है जिसको आप लोग बोलते हो एक्सेस रीजन, ठीक है। एक्सेस वर्ड ही कह रहा है कि जरूरत से ज्यादा, यानी कि रिएक्टेंट, रिएक्टेंट which is present in greater amount than requirement, कि जरूरत से ज्यादा है। It means it is not 100% consumed, कि पूरा का पूरा कंज्यूम नहीं होगा, पूरा का पूरा कंज्यूम नहीं होगा। ऐसे ही हमारे पास क्या आ जाता है, लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट यानी कि रिएक्टेंट which is less than the required amount, ठीक है। रिक्वायर्ड अमाउंट से कम है तो इसका मतलब है गेट्स कंज्यूम्ड 100%, कि वो 100 का 100% कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब तक हम सिर्फ रिएक्टेंट की बात कर रहे थे, अब तक हम सिर्फ बात कर रहे थे कि भाई ये इतने ग्राम है, लेकिन अब हम दो नई टर्म्स लेके आ रहे हैं, एक एक्सेस रिएजेंट और दूसरा कौन सा, लिमिटिंग रिएजेंट। जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो 100% कंज्यूम हो जाएगा, जो एक्सेस रिएजेंट होगा वो बच जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक बड़ा सिंपल सी एक सिचुएशन देता हूँ, अब सिचुएशन को ध्यान से सुनना। मान लेते हैं हमारे पास एक उससे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट टू प्रिपेयर योर नोट्स। आई गिव यू वेरी सिंपल सिचुएशन कि एक कंपनी है, वो बाईसाइकिल या साइकिल मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। साइकिल मैन्युफैक्चरर है। अब वो जो साइकिल मैन्युफैक्चरर है वो क्या करती है, वो जो है 100 फ्रेम बनाती है, 100 फ्रेम्स है, ठीक है। वो बनाती है आपके पास 80 जो है 80 पेयर ऑफ टायर्स, ठीक है, 80 पेयर ऑफ टायर्स। उसके बाद वो क्या बनाती है, 200 जो है वो हैंडल्स बनाती है। उसके बाद वो 500 जो है सीट कवर या जो सीट है वो बनाती है। अब क्वेश्चन इज हाउ मेनी साइकिल्स आर प्रोड्यूस्ड इन वन डे, एक दिन में कितने साइकिल प्रोड्यूस कर पा रही है कंपनी, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि एक दिन में वो कितने साइकिल बना सकती है। तो देखो 100 फ्रेम है, 100 फ्रेम मतलब 100 वो है स्टैंड है उसके, 100 स्टैंड को साइकिल में कन्वर्ट करने के लिए आपको जो है कितने पेयर चाहिए टायर के, 100 पेयर चाहिए। कितने पेयर चाहिए, 100 ही पेयर चाहिए भाई। 200 टायर बनेंगे
200 टायर, एक साइकिल में 100 टायर आते हैं, तो उस हिसाब से वो कितने आ जाएंगे, 100 साइकिल बनाने के लिए आपको 100 पेयर चाहिए, लेकिन है कितने 80। अब हैंडल कितने हैं 200, सीट कितनी बन रही है 500, तो मार्केट में कितनी आएंगी साइकिल्स, मेरे हिसाब से आएंगी 80 साइकिल्स। आंसर इज 80। बाय कि भाई जब तक टायर नहीं लगा होगा साइकिल पूरी नहीं होगी, साइकिल पूरी नहीं होगी तो आप उसको मार्केट में नहीं बेच सकते। तो साइकिल कितनी प्रोड्यूस हुई, मार्केट में कितनी बनी, वो किस बात पे डिपेंड करता है कि सबसे कम चीज कौन सी थी। सबसे कम चीज थी मेरे पास टायर, टायर कम थे तो भाई 80 टायर बन सकते हैं एक दिन में, 80 साइकिल में वो फिट हो गए, 80 साइकिल में फिट हो गए, उसके बाद आपके पास टायर बचे नहीं तो 80 तो मार्केट में चली जाएगी, बाकी आप बैठ के वेट करोगे कि भाई और टायर बनेंगे तो हम डालेंगे। तो ऐसे ही रिएक्शन में होता है। रिएक्शन में क्या होता है, कई चीजें जरूरत से ज्यादा होती है, जैसे यहाँ पर ये 100 ज्यादा है, ठीक है, 200 ये भी ज्यादा है, 500 ये भी ज्यादा है, लेकिन आपके पास प्रोडक्ट कितना बनेगा वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि जरूरत से ज्यादा कौन सी है। एक्सेस रिएजेंट पे चीजें डिपेंड नहीं करती, डिपेंड किस पे करती है, लिमिटिंग रिएजेंट पे, मतलब जो चीज कम क्वांटिटी में है, कि भाई जैसे ही टायर खत्म हुए जो प्रोडक्शन है वो रुक गई, ऐसे ही हम वहां पर कहेंगे कि जो लिमिटिंग रिएजेंट है जैसे ही वो पूरे तरीके से कंज्यूम होगा, खत्म होगा, हमारी प्रोडक्शन रुक जाएगी, आगे प्रोडक्ट बनेगा नहीं, क्योंकि रिएक्टेंट रहा नहीं तो प्रोडक्ट बनेगा भी नहीं। तो इसका मतलब है कि ड्यूरिंग द रिएक्शन जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आप लगाते थे वो वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जरूरत से ज्यादा कुछ चीजें आ जाती है, जो जरूरत से ज्यादा है, दीज आर कॉल्ड एक्सेस रिएजेंट। जो चीज जरूरत से ज्यादा है, यहाँ पर 500 सीट जो है जरूरत से ज्यादा थी, क्या सारी कंज्यूम हो जाएंगी, नहीं कंज्यूम होंगी। हैंडल जरूरत से ज्यादा थे, सारे कंज्यूम हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। 100 फ्रेम जरूरत से ज्यादा है, क्या सारे कंज्यूम हो जाएंगे, नहीं होंगे। जो चीज जरूरत से ज्यादा है वो कभी भी पूरी कंज्यूम नहीं होगी, जो पूरी कंज्यूम होगी वो क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है, जो लिमिटेड क्वांटिटी में वो डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। पीछे जो हमारे पास क्वेश्चन था वो ये था कि 50 किलोग्राम नाइट्रोजन था, 10 किलोग्राम हाइड्रोजन था, उसके बाद उसने पूछा कि बताओ अमोनिया कितना बनेगा। तो अमोनिया की प्रोडक्शन, प्रोडक्ट इज अमोनिया, जैसे यहाँ प्रोडक्ट क्या था साइकिल, वहां प्रोडक्ट है अमोनिया, अमोनिया कितना बनेगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। ठीक है, जैसे पीछे कैलकुलेशन की तो हमें पता चला कि भाई अगर 50 किलोग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट कराना है तो उसके लिए 10.7 किलोग्राम 10.7 किलोग्राम जो है आपको क्या चाहिए, आपको जो है हाइड्रोजन चाहिए, लेकिन जो हाइड्रोजन दिया हुआ है वो कितना है 10, जरूरत से कम, यानी कि हाइड्रोजन क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो अमोनिया कितना बनेगा वो डिपेंड करेगा लिमिटिंग रिएजेंट पर। यानी कि आज हमने जो सीखा वो क्या सीखा, स्टोइचियोमेट्री, स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, तीसरा हमने टर्म सीखी लिमिटिंग रिएजेंट, और फोर्थ हमने सीखी एक्सेस रिएजेंट। नेक्स्ट टाइम हम जब मिलेंगे, कल ही मिलेंगे, डोंट वरी, कल के वीडियो में हम बात करेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट से आप कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कैसे डिसाइड होता है कि लिमिटिंग रिएजेंट ये है तो प्रोडक्ट इतना बनेगा। ठीक है, तो ये बात करेंगे हम कल, यानी कि कल का हमारा जो वीडियो होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन द न्यूमेरिकल्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। सो टिल देन प्रैक्टिस हार्ड, बहुत मन लगा के पढ़े, टेक द फुल बेनिफिट ऑफ लॉकडाउन, and don't forget to like, share and subscribe. In case you have any problem you can send me your doubts. Till then